ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 21 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਚੇਨ ਕੈਂਪੇਨ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਚੇਨ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕੇਰਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ? ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MD ਆਫ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ ਦੇ MD ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਰਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। 4 ਵਾਰ CM ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਇਹ? ਮਨੋਹਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। 4 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ, ਪਲੱਸ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਤਗੁਰ ਪਾਟਿਲ ਔਰ ਮਾਇਆ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਗਵੇਨਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਤਰੁਣ ਵਿਜੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ। ਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਰੁਣ ਵਿਜੇ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸਾ ਮੋਦੀ ਅ ਟੇਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਬੁੱਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਬੁੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੀਜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਇੱਕ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਗਲ ਓਝਾ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਮਜੂਮਦਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਅਫਰੀਕਾ ਲੋਇਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮੋਰੋਕੋ, ਟੂਨੀਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ USA ਔਰ ਅਫਰੀਕਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਹਿਰਾਮ ਸਾਲੇ ਨੇ ਅਡਮਾਨ ਜ਼ੁਲਫੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ। ਬਹਿਰਾਮ ਸਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਡਮਾਨ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਰਾਕ ਦੇ। ਬਹਿਰਾਮ ਸਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਹਿਰਾਮ ਸਾਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੂ ਮੇਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫॉर ਵੂਮਨ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ CMD। ਕਿੱਥੇ CMD ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ CMD ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਅੱਛਾ, ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਆਰਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
याद रखने ने। नैक्सट अज की अपनी स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु बारे डिस्कस करांगे। तमिलनाडु बनाया गया सी 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 ਨੂੰ तमिलनाडु बनाया गया। कैपिटल चेन्नई है, लार्जेस्ट सिटी भी चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर कौन ने थे? E.K. पलानास्वामी। E.K. पलानास्वामी चीफ मिनिस्टर ने। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने 37 डिस्ट्रिक्ट्स ने, लोकसभा सीट्स ने 39, राज्यसभा सीट्स ने 18 और विधानसभा की सीट्स ने 234 विधानसभा की सीट्स ने। यूनिकैमरल है, याद रखना। बॉर्डर स्टेट्स की अगर आप गल करिए, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश 3 स्टेट्स और एक यूटी नाल बॉर्डर शेयर कर रहा है तमिलनाडु। 3 स्टेट्स और एक यूटी दे नाल। मीनाक्षी टैंपल और कामाक्षी टैंपल वैरी इंपोर्टेंट टैंपल्स ने। मीनाक्षी टैंपल और कामाक्षी टैंपल दोनों कित्थे ने? तमिलनाडु दे विच। तमिलनाडु दे विच पोंगल फैसटिवल कित्थे मनाया जाता है? तमिलनाडु दे विच मनाया जाता है। स्टेट एनीमल की गल करिए, नीलगिरी टहर स्टेट एनीमल है। स्टेट बर्ड एमरल्ड डव। स्टेट फ्लावर ग्लोरिसा लिली और स्टेट ट्री पाम ट्री। स्टेट ट्री केड़ा? पाम ट्री स्टेट ट्री है। इस तो इलावा गुंडे नैशनल पार्क, मधुमलाई नैशनल पार्क, अन्नामलाई नैशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नैशनल पार्क, मुकुर्थी नैशनल पार्क, पलानी नैशनल पार्क। 6 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स ने, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। गुंडे नैशनल पार्क, मधुमलाई नैशनल पार्क, अन्नामलाई नैशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नैशनल पार्क, मुकुर्थी नैशनल पार्क और पलानी नैशनल पार्क। गुंडे, मधुमलाई, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, मुकुर्थी और पलानी, याद रखने ने। इस तो इलावा वलनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विराल मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विराली मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वलांडू और विराला मलाई दोनों ही कितने ने? तमिलनाडु दे विच। भारतनाट्यम डांस फेमस है तमिलनाडु दे विच। भारतनाट्यम डांस फेमस है तमिलनाडु दे विच। सारी चीज़ां याद रखनियां ने। नैक्सट अज दे फर्स्ट क्वेश्चन के वाल चलते हैं। हु हैज़ बीन अनाउंसड एज फर्स्ट विनर ऑफ रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप 2019 बाय सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़। CMS किया जाता है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़। इन्हों द्वारा एक अवार्ड दिता गया रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप 2019। रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप 2019 किन्हों दिता गया? ये दिता गया, अपना आंसर होएगा इस 5th ऑप्शन, प्राची सालवे और प्रदीप द्विवेदी। प्राची सालवे और प्रदीप द्विवेदी दोनों को यह प्राइज़ दिता गया CMS द्वारा। CMS की फुल फॉर्म बनेगी सेंटर फॉर मीडिया स्टूडियोज़। फर्स्ट अवार्ड दिता गया, फर्स्ट विनर है, ठीक है, 2019 एडिशन का यह दिता गया, याद रखना है। इस तो इलावा करण सालवे की अगर आप गल करिए, करण बाजवा MD अपॉइंट किए गए किते? गूगल क्लाउड के। हमने डिस्कस किया सी अपने क्विक रिवीजन के गूगल अलाउड के MD अपॉइंट किए गए सी करण बाजवा। प्राची सालवे और प्रदीप द्विवेदी दोनों को यह प्राइज़ दिता गया। नैक्सट है विच टैनिस ग्रैंड स्लैम इज़ पोस्टपोन्ड ड्यू टू करोना वायरस करके एक टैनिस ग्रैंड स्लैम पोस्टपोन कर दिता गया। कहते टैनिस ग्रैंड स्लैम पोस्टपोन किया गया? इसका करैक्ट आंसर होएगा 2nd ऑप्शन। सब तो पहले आप डिस्कस करते कि करोना वायरस करके की पोस्टपोन किया गया। आईफा अवार्ड हैल्ड किए जाने सी भोपाल और इंदौर के दोनों सिटीज़ कितने ने? MP के। इसनों पोस्टपोन कर दिया गया करोना वायरस करके। दूजी चीज़ इंडिया और यूरोपियन यूनियन का समिट कैंसल कर दिया गया, ठीक है। इस तो इलावा बैडमिंटन एशियन चैंपीयनशिप इसनों कैंसल नहीं किया गया, इसका वैन्यू चेंज किया गया। वुहान के हैल्ड किया जाना सी, वुहान चाइना के है, इसनों चेंज करके कित्थे किया गया? मनीला कित्थे है? फिलीपींस के है, ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा सऊदी अरेबिया का फर्स्ट फिल्म फैसटिवल पोस्टपोन कर दिता गया। इस तो इलावा मिलन एक्सरसाइज भी पोस्टपोन कर दिता गया, ठीक है। सारी चीज़ां पोस्टपोन कर दी गई ने, याद रखनियां ने करोना वायरस करके। इस तो इलावा ग्रैंड स्लैम की गल करिए
ਤਾਂ ਟੈਨਿਸ ਦੇ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮਸ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮਸ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਫਸਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ, ਫਿਰ ਵਿਲਡਨ ਓਪਨ ਔਰ ਫਿਰ US ਓਪਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਤੇ ਖੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਤੇ ਖੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਵਿਬਲਡਨ ਔਰ US ਕਿਹੜੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਤੇ ਖੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। US ਓਪਨ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਤੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਤੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਬਲਡਨ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਲੇ ਤੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਲੇ ਤੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਲਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਨਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੂਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਵਿਨਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਰਸਨਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨੋਵਾਕ ਦਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ। ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਡੋਮਿਨਿਕ ਥੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨੋਵਾਕ ਦਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦਾ ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਨੋਵਾਕ ਦਜੋਕੋਵਿਕ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ। ਔਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਥੀਮ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੂਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਸੋਫੀਆ ਕੈਨਿਨ ਨੇ ਗੈਬਰੀਨ ਮੁਗੁਰਫਾਜ਼ਾ ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਗੈਬਰੀਨ ਮੁਗੁਰਫਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਸੋਫੀਆ ਕੈਨਿਨ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋਫੀਆ ਕੈਨਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਪੇਨ ਤੋਂ। याद रखने। नेक्स्ट है, विच ई-कॉमर्स मेजर हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद एगन लाइफ इंश्योरेंस टू सेल पेपरलैस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। केड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है जिस दे द्वारा पार्टनरशिप की गई एगन लाइफ इंश्योरेंस द्वारा नाल। एगन लाइफ इंश्योरेंस दे नाल किस चीज़ की पार्टनरशिप की गई, पेपरलैस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उत्ते पेपरलैस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची जाएंगियां। इस पार्टनरशिप नूं किस नाल किया गया, इस पार्टनरशिप नूं किया गया फ्लिपकार्ट दे नाल। फ्लिपकार्ट ने एगन लाइफ इंश्योरेंस के नाल पार्टनरशिप की है। ठीक है जी, करैक्ट आंसर अपना फर्स्ट ऑप्शन। इस तो इलावा एमेजोन बारे जरूर याद रखना है। एमेजोन के फाउंडर ने जेफ बेजोस ने एमेजोन के, और इन्होंने इंडिया की विजिट पर आ चुके हैं और यह अनाउंस किए गए सी रिच लिस्ट के अनुसार इंडिया दे वर्ल्ड के सब तो ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन। ठीक है जी, इस लिस्ट के जिस मुकेश अंबानी जी रहे सी 9th नंबर पर। मुकेश अंबानी रहे सी 9th नंबर पर। नैक्सट है 7th एडिशन ऑफ वर्ल्ड सिटीज समिट। वर्ल्ड सिटीज समिट का 7th एडिशन हैल्ड किया जाएगा किहड़ी प्लेस के उत्ते, किहड़ी प्लेस के उत्ते या किहड़ी कंट्री दे विच वर्ल्ड सिटीज समिट हैल्ड किया जाएगा। किनवा एडिशन, 7th एडिशन। याद रखना किनवा एडिशन किया जाएगा, 7th एडिशन किया जाएगा। कित्थे, सिंगापुर दे विच। सिंगापुर दे विच इसनूं हैल्ड किया जाएगा। ये किया जाएगा जुलाई दे विच, 5 तो लैके 9 जुलाई दे विच इसनूं हैल्ड किया जाएगा सिंगापुर दे विच। इसकी थीम याद रखनी है, थीम नोट कर लियो, लीवेबल सस्टेनेबल सिटीज़। लीवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज़, लीवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज़ इसकी थीम रही सी। लीवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज़, लीवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज़। और इस तो गया अडेप्टिंग एंड डिसरप्टेड वर्ल्ड, अडेप्टिंग एंड डिसरप्टेड वर्ल्ड। लीवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज़, अडेप्टिंग एंड
डिस्ट्रप्टेबल वर्ल्ड। ठीक है जी, ये थोड़ी याद करनी डिफिकल्ट है, मैंने भी याद की थी तो मैं थोड़ा भुल गया सी, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन है। लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज, अडैप्टिंग एंड डिस्ट्रप्टेड वर्ल्ड। ठीक है, याद रखना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन की गल करिए, जापान दे विच 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स जापान दे विच। साउदी अरेबिया की कैपिटल याद रखनी है रियाद, करंसी रियाल। इटली 2026 का ओलंपिक्स हैल्ड किया जाएगा, विंटर ओलंपिक्स 2026 का इटली दे विच। इस तो इलावा इटली दे विच एक होर चीज़ हैल्ड की जाएगी, G20 की 2021 समिट, G20 का 2021 का समिट इटली दे विच, और G20 का 2022 का समिट इंडिया दे विच। G20 का 2022 का समिट इंडिया दे विच, याद रखना है। इस तो इलावा इंडिया दे विच 2022 दे विच एक होर इवेंट हैल्ड किया जाएगा, इंटरपोल की मीटिंग हैल्ड की जाएगी, इंटरपोल की मीटिंग 2022 दे विच इंडिया दे विच, याद रखनी है। ठीक है जी, सारी चीज़ें याद रखनिया ने। नैक्सट आप चलते हैं, हू लॉन्च अ रोपड़ पैसेंजर फेरी, किन्ना द्वारा एक रोपैक्स, रोपड़ नहीं रोपैक्स पैसेंजर फेरी सर्विस लॉन्च की गई मुंबई और मंडवा दे विच, मुंबई और मांडवा दे विच इसनूं लॉन्च किया गया रोपैक्स पैसेंजर फेरी सर्विस नूं। किन्ना द्वारा लॉन्च किया गया, मनसुख लाल मंडाविया द्वारा। मनसुख लाल मंडाविया कौन ने, मनसुख लाल मंडाविया अपने मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग ने, मनसुख लाल मंडाविया मिनिस्टर ऑफ शिपिंग ने। राज्यसभा MP ने गुजरात तो राज्यसभा MP ने मनसुख लाल मंडाविया। बाकी ऑप्शन की गल करिए, कोई ना कोई मिनिस्ट्री इन्होंने लवे। सब तो पहले किरण रिजिजू बारे गल कर लेने, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अरुणाचल वेस्ट तो लोक सभा MP ने। ठीक है, श्रीपति एसो नायक लवे मिनिस्ट्री है आयुष मिनिस्ट्री मिनिस्टर ने, और यह नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने। इस तो इलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस भी नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस राव इंद्रजीत सिंह कौन ने, राव इंद्रजीत सिंह लगे दो मिनिस्ट्रियां ने, इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रियां, प्लानिंग मिनिस्ट्री और दूजी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग मिनिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री किन्ना लवे है, राव इंद्रजीत सिंह लवे। और यह लोक सभा MP ने गुरुग्राम हरियाणा तो लोक सभा MP ने राव इंद्रजीत सिंह। संतोष कुमार गंगवार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, संतोष कुमार गंगवार लवे। और इन्ना लवे यह लोक सभा MP बरेली यूपी तो लोक सभा MP ने संतोष कुमार गंगवार। ठीक है जी, याद रखने। नेक्स्ट है, ऑन विच डे ग्लोबल रीसाइकलिंग डे इज ऑब्जर्व्ड। ग्लोबल रीसाइकलिंग डे ऑब्जर्व किया गया, किहड़े दिन इसनूं ऑब्जर्व किया गया, ग्लोबल रीसाइकलिंग डे ऑब्जर्व किया गया 18 मार्च नूं ग्लोबल रीसाइकलिंग डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, याद रखना है। इसकी थीम भी याद रखनी है, इसकी थीम सी रीसाइकलिंग हीरोज इसकी थीम रही सी। ग्लोबल रीसाइकलिंग डे 18 मार्च। बाकी ऑप्शन की अगर आप गल करिए, रिसेंटली डिस्कस किए थे 12 मार्च वर्ल्ड किडनी डे 12 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली इसमें ऑब्जर्व किया जाता है मार्च के दूजे थर्सडे वाले दिन, सैकेंड थर्सडे ऑफ मार्च ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल 12 मार्च को ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम रही सी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर 12 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। 13 मार्च को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड स्लीप डे ऑब्जर्व किया गया 13 मार्च वाले दिन। कदों किया गया? 13 मार्च वाले दिन। 14 मार्च पाई डे, जो मैथमैटिक्स के आप पाई यूज़ करते हैं। 14 मार्च पाई डे। 15 मार्च को ऑब्जर्व किया अपने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे।
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ द सस्टेनेबल कंज्यूमर जिसकी थीम रही सी कंज्यूमर राइट्स डे और सस्टेनेबल कंज्यूमर थीम रही सी। ठीक है जी, नैक्सट चलते हैं एक होर दिन डिस्कस करते हैं आप इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कदों ऑबजर्व किया गया 21 मार्च ਨੂੰ 21 मार्च ਨੂੰ ऑबजर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है जी, कदों किया गया 21 मार्च ਨੂੰ जिसकी थीम रही सी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि अज के दिन ऑबजर्व किया गया 21 मार्च अज है और अज ऑबजर्व किया गया फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इस तो अलावा एक दिन होर मनाया जाता है अज के दिन वर्ल्ड पोइट्री डे। वर्ल्ड पोइट्री डे मनाया जाता है अज के दिन, याद रखना है 21 मार्च ਨੂੰ वर्ल्ड पोइट्री डे, इसनों नोट कर लियो। इस तो अलावा बाकी ऑप्शन के 8 मार्च इंटरनेशनल वूमेंस डे। इंटरनेशनल वूमेंस डे कदों मनाया गया सी 8 मार्च ਨੂੰ जिसकी थीम रही सी आई एम जनरेशन इक्वालिटी। आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वूमेंस राइट। आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वूमेंस राइट। 18 मार्च नैशनल वैक्सीनेशन डे। नैशनल वैक्सीनेशन डे ऑबजर्व किया गया 16 मार्च ਨੂੰ। 17 मार्च ਨੂੰ ऑबजर्व किया गया सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई सी 100th बर्थ एनिवर्सरी। 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई सी किन्हां दी? फर्स्ट प्रेजिडेंट सीगे बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेजिडेंट शेख मजूमदार रहमान। 17 मार्च ਨੂੰ ऑबजर्व की गई 100th बर्थ एनिवर्सरी। 20th मार्च ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस किया ਕਿਹੜਾ दिन? 20th मार्च ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस किया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। अज भी डिवाइस किया सी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया सी 20th मार्च वाले दिन। ठीक है जी, सारी चीज़ां याद रखनियां ने। नैक्सट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट नाम की एक बुक रिलीज़ की गई। इस बुक के ऑथर कौन ने? कौन इस बुक के ऑथर ने? इस बुक को लिखा गया बालचंद्र मुनगेकर द्वारा। थर्ड ऑप्शन बालाचंद्रन मुनगेकर द्वारा इस बुक को लिखा गया। ठीक है, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट याद रखना है। इस तो इलावा आप डिस्कस किया एक बुक डिस्कस की थी जिसनों रिलीज़ किया गया तवलीन सिंह द्वारा। तवलीन सिंह द्वारा किहड़ी बुक रिलीज़ की गई सी? लिखी गई सी सॉरी मिसा मोदी बुक किन्हां द्वारा लिखी गई सी? तवलीन सिंह द्वारा, जिहड़ी कि अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपैक्टेशन समथिंग इस तरीके की बुक सी मोदी जी उत्ते। तरुण विजय और सतगुर पाटिल और माया भूषण नावगनेकर इन्हां ने एक अलग अलग बुक लिखी किन्हां दे उत्ते? डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारीकर या फिर गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारीकर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर। तरुण विजय द्वारा जी बुक लिखी गई सी इस बुक का नाम से इनविंसीबल। आप डिस्कस किया हुणे अज की क्विक क्लास भी। और सतगुर पाटिल और माया भूषण नावगनेकर द्वारा जी बुक लिखी गई सी एन एक्सट्रा ऑर्डीनरी लाइफ उस बुक का नाम से। ठीक है, दोनों बायोग्राफीज ने एक तरीके दियाँ। मनोहर पारीकर के उत्ते, मनोहर पारीकर बारे याद रखना 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गोवा के और इस दे नाल डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं गोवा के 2014 तो 2017 के। चीफ मिनिस्टर की गल करिए इस टाइम गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने जिन्होंने मनोहर पारीकर जी की डैथ तो बाद बनाया गया सी। ठीक है, प्लस अगर इत्थे गवर्नर की गल करिए गोवा के गवर्नर बनते हैं सत्यपाल मलिक जिहड़े कि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर से इन्हों लगाया गया गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक। जम्मू एंड कश्मीर के इस टाइम लैफ्टिनेंट गवर्नर ने जी सी मुर्मू लैफ्टिनेंट गवर्नर ने इस टाइम किसदे? जम्मू एंड कश्मीर के। प्लस याद रखने ने एक होर नाम याद रखना है आर के माथुर ने लद्दाख दे। जम्मू एंड कश्मीर तो डिवाइड करके लद्दाख में यूटी बनाया गया सी तो लद्दाख के गवर्नर भी याद रखने ने आर के माथुर। नैक्सट है वर्ल्ड बैंक हैज़ इंक्रीज्ड कोविड-19 रिस्पोंस फंड टू हाउ मच अमाउंट। कोविड-19 का रिस्पोंस फंड है
इसनू इंक्रीज़ कर दिता है। पहले 10 मिलियन सीगा और इसनू 14 बिलियन, 10 बिलियन तो 14 बिलियन कर दिता है। ठीक है, किन्होंने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक याद रखना, वर्ल्ड बैंक के हैड 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 189 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ। ठीक है जी, सारी चीज़ा याद रखने ने। कोविड-19 के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रही ने, सारियां आप एक एक करके डिस्कस करते जा रहे हैं। इस तो इलावा एक होर याद रखना, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की लॉन्च किया? सेफ हैंड चैलेंज। सेफ हैंड चैलेंज कैंपेन, सेफ हैंड चैलेंज कैंपेन ਨੂੰ लॉन्च किया WHO ने। याद रखना WHO ਦੇ ਵਿੱਚ 194 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ और ਜਨੇਵਾ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ $6.5 ਬਿਲੀਅਨ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर ਇਟਸ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੂ फाइंड द कोरोना वायरस पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब याद रखना है, पैंडेमिक रिगार्डिंग अगर पुरानी न्यूज़ डिस्कस करिए, WHO द्वारा कोरोना वायरस ਨੂੰ ਪੈਂਡੇमिक डिक्लेयर किया गया ਸੀ। ਪੈਂਡੇमिक का मतलब होता है महामारी। ठीक है, और किहड़े बैंक ने अनाउंस किया? 6.5 बिलियन का पैकेज यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का यह अनाउंस किया ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसनू अनाउंस किया गया। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा एक चीज़ होर याद रखना है, कोरोना वायरस रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। व्हाट्सएप द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया, कोरोना वायरस ट्रांजैक्शन हब। कोरोना वायरस ट्रांजैक्शन हब लॉन्च किया गया, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब, CIH कह सकते हैं। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया गया। किसने पार्टनरशिप की है? WHO नाल, व्हाट्सएप ने WHO दे नाल, इस तो इलावा यूनीसेफ दे नाल और UNDP दे नाल। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, WHO और यूनीसेफ तिना दे नाल मिलके व्हाट्सएप ने पार्टनरशिप की है टू लॉन्च कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, ये 5 डिफरेंट वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल बैंक्स ने। वर्ल्ड बैंक बारे आप डिस्कस कर चुके हैं। IMF बारे डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल मोनेटरी फंड 189 मैंबर कंट्रीज़ ने। इसका हैडकुआटर भी वाशिंगटन DC के है। इसके भी 189 मैंबर कंट्रीज़ ने और इसका हैडकुआटर भी वाशिंगटन DC के है। दोनों याद रखने ने। वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट आप डिस्कस कर लिया, डेविड मलपास, और IMF के प्रेजिडेंट ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF के हैड ने। ठीक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक मैट्रो मनीला फिलीपींस के विच हैडकुआटर है। 68 मैंबर कंट्रीज़ ने और मसत्सुगु आसाकावा इज ए प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB बीजिंग चाइना के विच हैडकुआटर है। और जिम लिक्विन का नाम याद रखना, जिम लिक्विन इज द प्रेजिडेंट ने। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, NDB शंघाई चाइना के विच इसका हैडकुआटर है और इसके प्रेजिडेंट इंपोर्टेंट बनते हैं KV कमाथ KV कमाथ इस दे हैड ने। शंघाई चाइना के विच इसका हैडकुआटर है। ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड रिजर्वेशन इन द प्रमोशन ऑफ SC/ST एम्पलॉयज़। SC/ST एम्पलॉयज़ की रिजर्वेशन के विच प्रमोशन के विच रिजर्वेशन होंदी सी। ठीक है, किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने इसनू रिमूव कर दिता है? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसनू अनाउंस किया गया सी कि इसनू बंद किया जाए और इसनू किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिता है? इसनू किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड अपना करैक्ट आंसर होएगा कि जिहड़ी रिजर्वेशन दी जाती सी प्रमोशन के विच, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के विच प्रमोशन के विच जिहड़ी रिजर्वेशन दी जाती सी SC/STs नूं, उसनूं बंद कर दिता है। ठीक है जी, याद रखना है। अच्छा, कुछ इंपोर्टेंट फैसटिवल्स अगर आप डिस्कस करिए या कुछ इंपोर्टेंट स्कीम्स डिस्कस करिए
आंध्र प्रदेश नेतनम नेस्टम स्कीम अम्मा वोदी स्कीम कित्थे दी ने आंध्र प्रदेश दी। ठीक है, दिशा पुलिस स्टेशन कित्थे ओपन किया गया सी आंध्र प्रदेश दे विच, याद रखने। इस तो इलावा हरियाणा दे विच हैल्ड किया गया पहले स्कीम डिस्कस कर लेने, मुख्यमंत्री किसान समृद्धि परिवार कल्याण योजना। मुख्यमंत्री परिवार कल्याण योजना कित्थे शुरू की गई सी हरियाणा दे विच। अटल मजदूर कैंटीन लॉन्च की गई सी हरियाणा दे विच। सूरजकुंड मेला हैल्ड किया गया हरियाणा दे विच। गुजरात बारे आपां डिस्कस कर सकते हैं। गुजरात वहीली डिग्री योजना गुजरात दे विच लॉन्च की गई। इस तो इलावा फर्स्ट कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट, इंडिया का फर्स्ट कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनया सी गांधीनगर बारे याद रखना है। कोप 13 हैल्ड की गई सी गांधीनगर दे विच, जिसनूं बून कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। उत्तराखंड बारे याद रखना है। उत्तराखंड बारे एक तो स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर ओपन किया जाएगा उत्तराखंड के गंगोत्री नैशनल पार्क दे विच। एक याद रखना है ऋषिकेश दे विच, उत्तराखंड के ऋषिकेश दे विच ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश दे विच ओपन किया जाएगा, जिहड़ा कि लक्ष्मण झूला नूं रिप्लेस करेगा। उत्तर प्रदेश बारे योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ने। ठीक है, आनंदीबेन पटेल इत्थे दे गवर्नर ने। और यूपी दे विच की याद रख सकते हैं, यूपी दे लखनऊ दे विच की किया गया सी कि अटल बिहारी वाजपेयी मैडिकल यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इस तो इलावा और की डिस्कस कर सकते हैं यूपी दे विच। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कित्थे लॉन्च की गई सी यूपी दे विच। एक स्कीम लॉन्च की गई सी युवा स्कीम यूपी दे विच। ठीक है, याद रखनी सारी चीज़ां। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।